Yes, over to you. A very good afternoon to one and all present here. I, Ishita Anand, along with my co-host Shrishti Verma, welcome you all to the Value Added Workshop 2023. It's a workshop on value addition, life skills, ethics, and human values. We are honored to have our director of Amity School of Languages, Professor Dr. Kumkum Ray, our respected professors, and all my colleagues. As said by Michael de Montaigne, the value of life lies not in the length of the days, but in the use we make of them. In today's world, where everyone is materialistic, we need to stop and understand the importance of our ethics and human values. So now, please welcome our Honorable Director of Amity School of Languages, Professor Dr. Kumkum Ray, graduated from Lady Shriram College, Delhi University. She was rewarded with the best thesis for her PhD degree on Henry Louis Vivian Derozio, the first Anglo Indian nationalist poet. She is an educational social activist with 46 years of teaching experience. She is the member of the Area Advisory Board and the Board of the Studies of Amity University, Uttar Pradesh. Her anthology, Breathe Free, Flow Free, challenges literary narratives through poems. We are privileged to have her as our inspiration. Let's warmly welcome Professor Dr. Kumkum Ray. Namaskar, Pranam sir. It's great to have you today as our expert speaker. And without wasting any time, I would love my students to hear your words of wisdom. And we are truly indebted that you have taken your precious time to leave your imprints in the minds of our participators. So welcome so much, and I'm really grateful to you for having joined this session. Thank you, sir. Over to you. Thank you, madam. Good afternoon, everybody. तो मैं डॉक्टर कृष्णदत्त KGMU में रहा हूँ। सुपरएन्यूएशन के बाद आजकल एरा यूनिवर्सिटी में चिकित्सा मनोविज्ञान के विभाग को हेड कर रहा हूँ। सर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी सर, प्लीज हमारे एंकर्स को थोड़ा टाइम दीजिए कि वो आपको इंट्रोड्यूस कर सके। Okay, I thought she said over to you. Okay. Yes. Please, please, Sir, please. Sir, I have a little association. Okay. आपसे मुलाकात KGMU में नहीं हुई, but my daughter, Dr. Mahua Ray, used to talk about you. She was a 2000 Hewitt Gold medalist from KGMC. Okay, okay, okay. So I have heard about you, and I'm so privileged to host you today. Thank you. Same here. Ji, please take your time. Thank you, sir. Emotional intelligence is the difference that makes the difference. Emotional intelligence, or EQ, refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. A high EQ helps you to build relationships, reduce team stress, and diffuse conflict and improve job satisfaction. We now cordially invite and welcome our guest, Dr. Krishna Dutt, based in Lucknow, is one of the most renowned psychologists in the area. He has been practicing psychology in Uttar Pradesh for a very long time now. He has been a fellow life member of Indian Association of Clinical Psychology, Indian Association of Child and Adolescent Mental Health, and has been a life member of Red Cross Society of India, Indian Association of Epilepsy, and Kabir Peace Mission. He has also been an ex-editorial board member of Indian Journal of Clinical Psychology, and editor of Consultant and Faculty, Indira Gandhi Open University, and Honor General Secretary of Indian Association of Clinical Psychologists. He has published 30 research papers in national and international journals and has supervised more than 20 dissertations in the area of disability, health,
and education in issues to postgraduate students of psychology in Lucknow University and Indira Gandhi Open University. He has also authored 2 books, Jeevan Manovigyan for Public Education and Nirdeshika, Manual for Slow Learners. I now invite Dr. Krishna Dutt to speak on the topic and elaborate further about the importance of emotional intelligence. Over to you, sir. थैंक यू बेटा। तो बहुत सारा लंबा चौड़ा परिचय हो गया। मैं सीधे सीधे अपने अनुभव साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, बिकॉज आप यंग लोग ऑलरेडी थ्योरेटिकल बातें बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत ज़्यादा समझते हो, और आजकल ऑनलाइन गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर देता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि श्रद्धा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपने अनुभव साझा कर सकूं। और दूसरा ये कि मैं कोशिश करूंगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये जोर भी है कि मैं उस भाषा में बात करूं जिस भाषा में सभी भारतीय जनों को संदेश दिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कहाँ से चली। इंटेलिजेंस तो साइकोलॉजी का सबसे पॉपुलर शब्द है। आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है। क्या इस तरीके से इमोशनल कोशेंट भी निकाला जा सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और इस शब्द की उत्पत्ति इस बात से हुई कि ये देखने में आया कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है उनकी उपलब्धियां, उनके अचीवमेंट्स प्राय उतने ज्यादा नहीं होते। तो ये शंका उठी कि जब हाई इंटेलिजेंस हाई अचीवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो हाई अचीवर्स हैं, जिनके जीवन में उपलब्धियां बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको आगे ले जाते हैं। तब इस शब्द की उत्पत्ति हुई कि जो लोग इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं, those who are able to understand their own emotions as well as others, and at the same time those who are able to express and manage their own emotions as well as others, they are more emotionally intelligent. यानी जो अपने भावनाओं को समझ पाते हैं, एक हद तक नियंत्रित भी कर पाते हैं, और दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। कहना चाहिए कि दूसरों को भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त भी कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे नियंत्रित भी कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। मैं एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण दूंगा, और आपके लेटर में, इनविटेशन लेटर में था भी कि ऐसे व्यवहारिक अनुभव दिए जाएं जिससे समझ पैदा हो कि इसका अर्थ क्या है और कैसे लाइफ में ये स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं और उपयोग करी जा सकती है। तो एक बात तो पहले ये जानना जरूरी है कि इंटेलिजेंस इनहेरिटेड है, इंटेलिजेंस इनबॉर्न है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इनहेंस की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। मैं एक अपने मित्र के यहाँ बैठा था कुछ दिन पूर्व। वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, माननीय हृदय नारायण दीक्षित। वो हमारे मित्र हैं, और मित्र इस वजह से हैं कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं। भारतीय संस्कृत पे उनकी 30 पुस्तकें हैं। तो उस दिन उपनिषद पे चर्चा हो रही थी, ईशोपनिषद पे चर्चा हो रही थी। उसी समय उनके चुनाव क्षेत्र के 2-3 बच्चे आए, तो उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करिएगा, और ऐसा कह के उन बच्चों को बुलाया, उनसे थोड़ी देर गपशप करी, और कहते हैं भाई सेल्फी ले लो, फोटो खींच लो। और ये सब जब कर चुके तो उसके बाद मुझसे कहते हैं कि अगर मैं इनको ध्यान नहीं देता, 5 मिनट इनको समय नहीं देता, तो ये बच्चे निराश हो जाते और हमारे बारे में गलत धारणा बनाते। कहते वो तो कोई केजीएमसी के डॉक्टर आ गए थे, तो उनसे बातचीत में मगन थे और उन्होंने हमको तवज्जो नहीं दी। तो ये एक व्यवहारिक उदाहरण है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का, कि उन्होंने बाद में मुझे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर ऐसा ना करते और उन बच्चों की उपेक्षा हो जाती, तो उनसे उनका रिश्ता ठीक नहीं रह जाता, वो अच्छा महसूस नहीं करते। तो महत्वपूर्ण बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए सीधे उस बात पे आते हैं
कि वो कौन से तत्व हैं जो हमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्वयं के बारे में जागरूकता। वैसे तो ये बड़ा बृहद शब्द है। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है कि अपने बारे में आप संपूर्ण जानकारी आपको हो गई, पूरी समझ पैदा हो गई। लेकिन इसको व्यवहारिक अर्थ में अगर लें तो इफ यू नो योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यू आर सेल्फ अवेयर। अगर आप अपने गुण भी जानते हैं और साथ ही साथ अपने दोष भी जानते हैं, तो ये दोनों की जानकारी अगर आप में है तो आप सेल्फ अवेयर हैं। अब इसी से जुड़ा है दूसरा तत्व, दूसरा एलिमेंट, सेल्फ रेगुलेशन। भाई जब आपको पता है कि ये हमारे गुण हैं और ये हमारे दुर्गुण हैं या कमियां हैं, तो फिर उन दुर्गुणों पे, कमियों पे काम भी शुरू हो जाना चाहिए। और अगर काम नहीं शुरू हुआ है तो फिर जानकारी का फायदा ही क्या हुआ। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपके दुर्गुण हैं, उन पे वर्किंग शुरू कर दें। इसमें भी मैं एक उदाहरण दूंगा। एक सेमिनार चल रहा था, उस सेमिनार में एक प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, जैसा कि हम सब जानते हैं साइकोलॉजी में एनोनिमस बात होती है, किसी का नाम नहीं लिया जाता, खास करके तब तो नाम निश्चित ही नहीं लेना है जब कोई निषेधात्मक बात हो रही हो। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री ने, कि आप तो सब जानते हैं मैं तो शुरू से शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। तो कुछ लोगों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, सर आप प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं और आप इस बात को बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, अर्थात अपने आप इस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर पे कोई वर्क नहीं कर सके, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सके। और अगर नहीं ला सके तो फिर किस हैसियत से, किस हक से आप अपने काउंसलिंग में, क्लाइंट में चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग के आधार पे उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। तो ये है डियर सेल्फ रेगुलेशन। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा एलिमेंट होता है एडेप्टनेस इन रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तों में निपुणता। देखिए, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्तों को निभाना कई बार कठिन होता है। और इसको भी मैं एक उदाहरण से ही स्पष्ट करूंगा, क्योंकि उदाहरण वाली बात कहीं ना कहीं दिमाग में, मन मस्तिष्क में रह जाती है और शब्द तो विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। दो दोस्त हैं, 10 साल तक उनकी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। फिर अचानक एक दोस्तों को लगता है दूसरे दोस्त के बारे में कोई ऐसी जानकारी मिली और वो कहता है कि अब मैं इनसे बिल्कुल संबंध नहीं रखूंगा। और अगर ऐसा वो निर्णय ले लेता है और दोनों लोगों में इनमटी, दुश्मनी हो जाती है और एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं रखते, आप जान लें ये दोनों के लिए घातक है। ठीक है, हो सकता है एक मित्र को दूसरे के बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि वो अच्छा दोस्त अब नहीं रह सकता उसका, तो भी वक्त का तकाजा है कि उनमें हेलो गुड बाय रिस्पांस रहना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि दुआ बंदगी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चूंकि दोनों पहले गहरे दोस्त रह चुके हैं, एक दोनों के लूप होल्स दोनों के पास हैं, तो ये दोनों का इसमें नुकसान होगा। तो हेलो गुड बाय रिस्पांस बनाए रखना चाहिए। ये तीसरा तत्व हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस इनहेंस करने का। चौथा है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी एम्पैथी का होना जरूरी है। सिंपैथी, एम्पैथी, ये दो शब्द बड़े प्रचलित हैं और कई बार हमारे यंग स्टूडेंट्स ये समझने लगते हैं कि नहीं, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि सिंपैथी फर्स्ट स्टेप है और एम्पैथी उसके आगे क्या स्टेप है। सिंपैथी यानी किसी को देख के आपके मन में कुछ भाव जागृत हो रहा है, आपके मन में दया का भाव आ रहा है, इसे सिंपैथी कहते हैं। और किसी को देख के आप उसके लिए कुछ करने को उद्यत हो जाते हैं, तो उसका नेक्स्ट स्टेप है एम्पैथी, यानी सिंपैथी का नेक्स्ट स्टेप एम्पैथी है। आइए इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए बात। रहीम दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत दानी प्रकृति के थे और ये कवि भी रहे हैं। और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी तुलसीदास जी थे, ये भी कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस रची है। तो तुलसीदास ने रहीम दास से पूछा कि सीखे कहाँ नवाब जू
ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। यानी तुलसीदास ने पूछा रहीमदास से कि देने की इस तरह की आदत, इस तरह की कला आपने कहाँ से सीखी कि जब किसी को कुछ देने के लिए, दान देने के लिए आपके हाथ आगे बढ़ते हैं तो आपके नेत्र झुक जाते हैं। अब चूंकि रहीमदास जी भी कवि थे तो इसका जवाब उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कविता में ही दिया। उन्होंने कहा, देनहार को और है देत राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, दे वो रहा है, और लोगों को भ्रम हो रहा है कि देने वाला मैं हूं, तो इस शर्म से मेरी आंखें झुक जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे वो दे तो रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं अपने को डोनर। ये है परफेक्ट एम्पैथी, कि बिल्कुल अंतर ही महसूस न करना। दोनों का प्लेटफॉर्म एक होता है। सिंपैथी में जो सिंपैथी देने वाला उसका प्लेटफॉर्म अप है, और जिसके प्रति सिंपैथी दिखाई जा रही है उसका प्लेटफॉर्म लोअर है, और एम्पैथी में दोनों का प्लेटफॉर्म एक है। तो ये चौथा एलिमेंट हुआ। पांचवा, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंटरनल मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। प्राय लोगों की वाह प्रेरणा रहती है किसी कार्य को संपादित करने में। जैसे मान लो किसी यंग बच्चे से पूछें और उसने कहा कि हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम अमुक अमुक डॉक्टरों को जानते हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, बहुत अच्छा बंगला है, बहुत गाड़ी है और बड़ा सम्मान है समाज में, इसलिए हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन किस तरह की होगी? एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि डॉक्टर होने का जो Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. You are unmuted. You're muted right now. Now I am audible? Yes, 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 sir. Audible and visible both? Yes. मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने उदाहरण दिया था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है जब बाह्य स्थिति को देख के कोई आकर्षित होकर के ये तय करता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर और आईएएस का जो प्रभाव है समाज में, जो आभा मंडल है, उससे प्रभावित होकर के वो चाह रहा है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हुई। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने अमुक स्थान पे देखा कोई डॉक्टर नहीं है, वो गरीब लोग रहते हैं और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, और बहुत से लोग छोटी छोटी बीमारियों में से परेशान रहते हैं, तो मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूं कि इनकी सेवा कर पाऊं। तो ये इंटरनल मोटिवेशन हुई। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है, और जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो लगातार आपके साथ चलती रहती है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें क्योंकि ये काफी जरूरी तत्व है। कई बार हम समाज में देखते हैं, पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि नाम किसी के नहीं लूंगा,
यूपी के 3 चीफ सेक्रेटरी और वो तिहाड़ जेल से रिटायर हो रहे हैं, अंत में उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे जानिए ये सब वही लोग हैं जो एक्सटर्नली मोटिवेटेड थे, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन में ये होता है जब अपने गोल को आप पा लेते हैं तो बाकी बातों से फिर निश्चिंत हो जाते हैं। 3 तरह की गोल्स की बात करी जाती है ना, एक इमीडिएट गोल कि अभी तुरंत आपको क्या प्राप्त करना है, एक शॉर्ट टर्म गोल कि थोड़े समय के बाद आपको क्या बनना है, क्या होना है, लॉन्ग टर्म गोल आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, सबसे प्रमुख लक्ष्य जीवन का क्या है। तो अगर किसी का प्रमुख लक्ष्य मात्र इतना ही है कि हमें आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है या बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो वो वैसा होने के बाद फिर दिग्भ्रमित हो जाता है, फिर पता चलता है कि वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लग गए। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जो इंटरनली मोटिवेटेड होगा वो लगातार, क्योंकि उसको उस कार्य में आनंद आएगा, उसको चिकित्सकीय कार्य में आनंद आएगा, अगर वो आईएएस बना है तो उसको समाज की सेवा करने में आनंद आएगा, तो इस लिहाज से वो हमेशा लाइफ लॉन्ग मोटिवेटेड रहेगा। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे। आइए थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। तो एक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कई बार किसी से पूछे तो वो रीजंस देने लगते हैं कि इसमें मेरी भूल नहीं थी, ये मुझसे तो नहीं हुआ है, कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो व्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये इसका भी उदाहरण दिया जाए तो जैसे मान लो किसी की सेकंड पोजीशन आई है और उससे आप पूछें कि भाई आपकी सेकंड पोजीशन कैसे रहेगी, फर्स्ट क्यों नहीं आई, तो इफ ही और सी इज गिविंग सर्टेन रीजंस तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये उसे स्वीकारना चाहिए कि भाई जो जिसके फर्स्ट पोजीशन है उसने मुझसे ज्यादा लेबर किया होगा, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो मुझसे ज्यादा काबिल होगा। दिस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और ये बात लीडर से, नेताओं से सीखने लायक है। आप देखिए चुनाव होते हैं तो तुरंत जो पार्टी का हेड होता है वो कहता है हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसी तरीके से दूसरा है मॉडरेट रिस्क। रिस्क लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए, हाँ मॉडरेट, क्योंकि ऐसा रिस्क न लिया जाए कि आपके पास जितनी संपत्ति है सब दांव में लगा दें। लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो नो रिस्क नो गेन। अगला स्टेप है ईगरनेस टू नो द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स। जो आपने प्रयास किया है, जो आपने किया है, तो उसका रिजल्ट जानने की भी उत्सुकता आप में होनी चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट जानते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो क्या कमी रह गई, कैसे आप पिछड़ गए, इससे आगे जाने की योजना बनाते हैं। अगला है कि अन्वेषणात्मक रहें। यानी जीवन में सारी स्थितियां ऐसी नहीं होती कि आपको एक सेट पैटर्न पे सारी चीजें सीखी जा सकती है और उसके अनुसार जीवन गुजारा जा सकता है। इन्वेंटिव होना पड़ेगा, कई बार आपको अन्वेषणात्मक होना पड़ेगा, अपने ढंग से सोचना पड़ेगा कि इसमें नए तरीके क्या निकालने हैं। नेक्स्ट है कि गतिशील रहें, मोबाइल रहें। मोबाइल का मतलब मोबाइल यंत्र से बात नहीं हो रही है, गतिशील रहें। जैसे मसलन मैं कहूं कि अब मेरी अवस्था हो गई है और अब मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, तो ये मैं अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, सीमित कर रहा हूं, एक दायरे में बांध रहा हूं। हाँ वो मजबूरी है तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अब कहीं अगर वाहन प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं जा सकता हूं, लेकिन लिमिट नहीं करना चाहिए कि मैं जाता ही नहीं हूं। क्योंकि जीवन में ज्यों ही आपकी गति रुक जाती है, समझ लीजिए जीवन आपका एक दायरे में सिमटता चला जाएगा और वो फिर अंत की ओर जाने लगेगा। अगला है फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड, कि कुछ भी योजना बनाएं तो उसमें थोड़ा फ्यूचर का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि बस बहुत थोड़ा सा होने पर ही संतुष्ट हो गए कि अब और नहीं चाहिए। फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड होना चाहिए। वैसे तो संतोष एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, मान लो विद्यार्थी वो अचीवमेंट कर रहा है, तो वहां पे अगर वो कम से संतुष्ट हो रहा है तो फिर उसकी प्रगति बाधित हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है ऐसा न सोचना कि जब हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं तभी प्लेजर मिलता है। प्लेजर डज नॉट लाई एट द एंड ऑफ द रोड,
rather during the journey itself. जो सुख है, प्रसन्नता है, वो कुछ अचीव करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में, ऐसा नहीं कि वहां पहुंचकर ही प्रसन्नता होती है। जर्नी में, यात्रा में अगर आपको प्रसन्नता नहीं हो रही, यात्रा में सुख नहीं मिल रहा है, तो शायद उस डेस्टिनेशन में पहुंच के भी आप प्रसन्न नहीं होंगे। इस बारे में गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है कि इफ योर हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन रीजन्स, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ मिजरी। अगर आपकी प्रसन्नता किसी कारण पर निर्भर करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करती है, तो ये दूसरी तरीके का दुख है। यानी प्रसन्नता तो आंतरिक होनी चाहिए, उस कार्य को करने में आपको आनंद आना चाहिए, उस कार्य को करते हुए आपको प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये कुछ संकेत हैं कि इन संकेतों को ध्यान में रखा जाए तो आप अपनी जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको बरकरार रखेंगे, और अगर इंटरनली मोटिवेट रहेंगे तो जर्नी का आनंद आपके लिए कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे कहा भी गया है कि पाई हुई दुनिया तो संभाली नहीं जाती, और खोई हुई दुनिया के निशा ढूंढ रहे हैं। तो जो प्राप्त है, जो हमें उपलब्ध है, उसमें हम कैसे प्रसन्न रहें, उसमें कैसे आनंद लें, और सजगता से, अवेयरनेस के साथ सेल्फ रेगुलेट करते हुए धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहें, यही जीवन का रहस्य है, और इसी में जीवन का आनंद छुपा हुआ है। धन्यवाद। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं, जिससे कि कोशिश की जाए कि उस जिज्ञासा को अगर मैं शांत कर पाऊंगा तो जरूर प्रयास करूंगा। ओवर टू यू श्रद्धा जी। थैंक यू सर। यस भामिनी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम भामिनी है और मेरा सवाल सर ये है कि जैसे आपने हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आजकल का जैसा हम माहौल देख रहे हैं सामाजिक तौर पे, तो सर क्या हमारी जो भी एक इंसान की जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, क्या उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे उसकी अपब्रिंगिंग का भी कुछ असर होता है कि वो किस टाइप के माहौल में पला बड़ा है? ओके भावनी जी, ये तो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि अपब्रिंगिंग का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कि आपकी अपब्रिंगिंग ही संस्कार देती है, और संस्कार आपको बचपन में ही मिलते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स, अभिभावक ये कहते हैं कि देखिए पढ़ लिख जाइए तो अमुक व्यक्ति की तरह इतना बड़ा बंगला होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, आप ऐसे शान शौकत से रहेंगे, तो बच्चे को किस ओर मोटिवेट कर रहे हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन की ओर। और अगर इसके विपरीत वो ऐसा कहते हैं कि देखो फला कम्युनिटी में, इतनी एरिया में कोई डॉक्टर नहीं है, काश कोई डॉक्टर बन जाए, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो डॉक्टर बन जाओ तो कितना अच्छा हो, तुम यहाँ पे सेवा कर पाओ। तो अब अगर ये संस्कार दिया जा रहा है तो इंटरनली मोटिवेट किया जा रहा है। तो सच ये है कि जो हेरिडिटी है वो हमें इंटेलिजेंस देती है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक तरीके से कल्टीवेट होती है, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का प्राथमिक प्रभाव, क्योंकि प्राथमिक आपके जो टीचर्स हैं, प्राइमरी एजेंट्स, वो तो पेरेंट्स ही हैं। सेकेंडरी इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स होते हैं टीचर, शुरू के टीचर्स जब बचपन में जो आपको पढ़ाते हैं, और तीसरे लेवल पे होते हैं पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स। तो पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, ये तीन इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो बात स्पष्ट हुई भावनी जी? जी सर, धन्यवाद। जी, कोई और पूछना चाह रहा है कुछ? डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। इससे रिलेटेड जो कुछ मन में आपके आ रहा हो, जो बातें अभी हुई हैं, चर्चा हुई है, उससे संबंधित कुछ भी सवाल मन में आ रहा है तो कृपया पूछिए, जिससे उस बात को स्पष्ट किया जा सके।
जी सृष्टि जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लाइक आईक्यू को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है हर जगह पर, और अगर कोई दिक्कत भी हो तो आईक्यू वगैरह के टेस्ट भी बहुत होते हैं, पर लाइक ईक्यू के बारे में लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर हमें लोगों के साथ डिस्कस करना है और उन्हें अवेयर बनाना है तो कैसे अप्रोच करें इससे? हाँ, ये देखिए सृष्टि जी, आप बड़ी व्यापक बात कह रही हैं। जैसे कि प्रारंभ में ही बात हो रही थी कि जो लाइफ स्किल्स हैं उन पे जोर देने की जरूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। देखिए, आईक्यू एक क्षमता की है, एक तरीके से आपके पास एक पावर है आईक्यू। और सबसे बड़ी बात, जब वो पावर ईश्वरीय देन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, तो उसमें कुछ और किया नहीं जा सकता। लेकिन समझने की बात यह है कि आईक्यू एक बुद्धिमत्ता, आपके पास एक यंत्र की तरह है। उसके 3 उपयोग हो सकते हैं। एक, आप उसका उपयोग ही ना करें। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसे ही जीवन गुजार देते हैं। दूसरा, कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन निगेटिवली कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने उसमें ही पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे चार्ल्स शोब, राज नटवरलाल, जो विख्यात नाम हैं, ये जीनियस लोग थे, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। और तीसरा, कि आपके बुद्धि है और आप विधेयात्मक पॉजिटिव साइड में लगा रहे हो। तो बुद्धि होना बहुत कमाल की बात नहीं है, बुद्धि का उपयोग करने वाला आपका व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व उस बुद्धि का जैसा इस्तेमाल करता है वैसा उसका परिणाम आएगा। तो ये जागरूक करने की, बताने की जरूरत है कि बौद्धिक क्षमता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भावनाओं विचारों को समझें, दूसरे की भावनाओं विचारों को समझें और उसमें समायोजन बनाना सीखें। ठीक है सर, स्पष्ट हुई बात? जी सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? कुछ भी संदेह हो रहा है तो प्लीज पूछिए। हेलो सर, आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्या हम आगे बढ़े? एज यू फील लाइक। अगर एक बार पूछ लिए, लोगों से पूछना चाहें तो जी पूछें। Sir, I have a question, sir. प्लीज प्लीज। Yes, sir, मेरा ये था कि एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है EQ की मदद से? जी, पहली बात तो ये कि अगर एंजाइटी के फीचर्स आने लगे हैं तो उसको सबसाइड करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। जैसे एक टेक्निक होती है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन फॉलोड बाय डायफ्राम ब्रीदिंग। शवासन की मुद्रा में लेटने को व्यक्ति को कहा जाता है, बदन के हिस्सों को कड़ा करें, थोड़ा ठहरें, फिर रिलैक्स करें। इस तरह से पहले मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और फिर स्टमक पे हाथ रख के लंबी लंबी सांस लेने को कहा जाता है, डायफ्राम ब्रीदिंग, पेट वाली सांस। तो ये रिलैक्स करती है, ये व्यक्ति को शांत करती है। तो इस तरह से एंजाइटी फीचर्स कम हो जाते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके पूरे जीवन को ही व्यवस्थित करती है, लेकिन जब किसी में एंजाइटी फीचर्स आ गए हैं तो एंजाइटी को रिड्यूस करने की टेक्निक लगानी पड़ेगी। एम आई क्लियर? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। Yes, Ishita, I think we can move ahead. Thank you, sir, for taking time out from your very busy schedule and for your informatory words. Thank you for this thoroughly enriching session. Thank you very much. Thank you, Yuval. I would like to announce a thing that for the participants, that please note, as we advise you that you have been attended throughout the session, and towards the end of the session, I want that every participant is required to mail their answers about
The few questions based on the talk. Only after the submission of the assignment you will be eligible to receive the certificate of the participation. Timely completion of the assignment is solicited as it will be considered for the certificates. This brings us to the end of the 4th day of Value Added Workshop. Thank you all for your patience and participation. Stay tuned with us tomorrow, that is 14th July 2023. We have Dr. Kajal Srivastava as our eminent speaker. We will meet you again tomorrow. Wishing you all a beautiful day ahead. Thank you. And thank you all for asking your questions and clearing your doubts. It has been a very enriching session. I would really like to thank you, sir, for your presence. Thank you. Thank you again.